Ladies and gentlemen, now it is time for our first panel discussion of the day on the topic Amrit Kaal for MSMEs in Madhya Pradesh. Empowered, inclusive, prosperous. As India's Amrit Kaal is officially underway for a technology-driven and knowledge-based economy, what potential does it hold for our MSMEs? The first panel will throw light on existing policy support, access to affordable credit, challenges to innovation in business, issues around compliance, including GST, and more to make the future of MSMEs in MP empowered, inclusive, and prosperous. For this panel, we invite, in alphabetical order, Mr. Deepak Sharma, Vice President, Federation of Madhya Pradesh, Chamber of Commerce and Industry, and CEO, Linkage Technologies. He is a visiting faculty of Business Economics and International Business at various management institutions and has been member of SME Task Force MP, President Lagu Udyog Sangh MP, and more. Next, we have Mr. Pradeep Karambelkar, founder, VITBS Headboard, and Executive Director of Bhopal, Chapter of Global Business Networking Organization, BNI. Mr. Karambelkar is a seasoned entrepreneur, startup mentor, and investor. He is on leadership positions in various organizations like TIE MP, CIIP, PSDCCI, Bhopal Management Association, etc. Joining him is Mr. Rahul Choudhary, Principal Advisor, Center for Economy, Trade and Innovation, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis. His extensive experience of over 22 years spans in various leadership roles in the corporate sector and subsequent to a career switch, specializes in public policy research and government advisory. He brings a distinctive knowledge in the area of development finance from the standpoint of financial inclusion and its socio-economic impact on the citizens. And to moderate this forum, may I please invite Mr. Prasad, Associate Professor at VITBS, Bhopal University. Mr. Begde is a PhD, FBA, and PBA in Business Administration. He has more than 70 years of teaching and research experience. He has worked as a faculty member with various universities in different countries, including Fiji and Oman. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our panel. Good afternoon. So I will start here. Firstly, I would like to thank Financial VITBS to organize such a wonderful event. So I can say a lot of fantastic academics also to get benefit to understand about small, micro, and medium enterprises. And this is the first panel I am going to moderate. And before we start the questioning and question answer session, little bit in just I want to intro about this session. Actually, we are going to discuss here this Amrit Kaal, means 75 years of independence. So government of India is called Amrit Kaal. So Amrit Kaal in all sectors, as well as Amrit Kaal in micro, small and medium enterprises also. Because of his great leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi and followed by our Honorable CM Shri Shivraj Singh Chauhan ji. So in the state also we are following the same lot of initiatives taken by the government to continue this promoting micro, small and medium enterprises. The mission of the government basically is called Atmanirbhar Bharat and Making India. So I would just going to start this session. The reason I say it's timely is because Amrit Kaal, what is called as Amrit Kaal, has to be understood in context of some numbers. And I think that's we should all understand that the pace with which India is growing is phenomenal. And it is phenomenal not by
the standards are comparative, but also in its absolute terms. So just think about it. In every 5 years for last 10 years, we've been adding $1 trillion in our economy. So effectively, in next, by the time we reach 2030 max, perhaps earlier than that, we would be a $7 trillion economy. Today we are at $3.5 trillion. We went almost $4 trillion. So well within our next decade, we are going to see twice the size of the economy. So that pace is something phenomenal, and probably that is the reason why it is on HMI. Now, coming back to the question about the policy, and I think one of the prior medalists were giving a lot of details about what exactly are the things that the state government has done and some bit of what the national, the central government has done. So there is less that I want to get into it. But there are things which I think goes much beyond just MSME. There are things which the state government or the national government together have done, which influences the overall entrepreneurship ecosystem. Something like ODOB, one district, one product. I think some of us must have heard of it, must have got benefit out of it. I think is a major step forward in terms of what need to be looked upon, how the entrepreneurship in product-based approach can be thought of. Similarly, the initiatives on women collectives. So SHG women movement, I think, is a great example of how enterprises are being built and entrepreneurship is being pushed in rural aspects of the state and that thing. Then there are other things like the Sikho Kamal program. Now, I will come back on this particular thing in a minute. Why do I put this in the forefront of what the initiative of the government is and what are the ramifications of it? But I think these are some of the important steps the government have taken. But the question is not about what are the initiatives that are making. The question really is about what are the things that we still feel is the policy gap or the challenges that we need to overcome so that the larger benefit can be looked upon and found by the MSME segment. And I see that there are few major areas which need intervention. So the first one is the transition that MSMEs have to go through. And what I mean by that is that we all know there was a time when there were list of industries which were classified and secured for MSME and for they were not through the competition list, open competition. Those days are gone. There is no more a list which effectively protects us from anywhere and from competition. When those kind of lists used to exist, the requirement was to control the production systems. Today, of course, we do not have those kind of layers and those kind of protections. The entire focus is moved towards the management of the cost and managing the cost so that we become competitive, so that we get market share not only in the domestic market but also in the international market. So this transition from managing production to managing costs is a big change, and this requires a change in the mindset of the entrepreneur themselves. And this probably requires a more change in the sense of the practices that the industries are following and practicing. This is considered to be one of the big challenge and one of the big reason why the shift above micro to small and the medium is not as smooth as what it was expected to be. So for my biggest policy challenge is around, number one is around this transition. The second one is around transformation. That was applicable some time back, probably is no more applicable. The way in which the businesses are transforming requires changes, and what do we mean by those kind of how does the policy regime comes into it is also an equally important thing.
And lastly, I think the transformation and the transition is to be supported by facilitation. I think there are lots of things that have been talked about, but an entrepreneur has to go through many coordinations and working with different bodies. So you have licensing organizations and bodies, you have banks, you have statutory bodies, you have suppliers. So think go on and manage these kind of large networks. These requires very big changes, and that requires facilitation. I think as a policy priority, that should be one of the things which the government should probably in there. Thank you, sir. Absolutely. So, let's the industry and association. So, about the very, I think, question, like, sector government initiated this, how did it done? But we're so, how, what state taking the initiatives among this, all the Amazon. Thanks, additional space for organizing this. One shop, the longer shop seems to be here. And Shachi and Rauji both are from the area. They are basically the scholars. One name is Kasane. He was presenting and caring some scholars. I thought they was from here. The Liberty, the language of the MSME here in Madhya Pradesh is Hindi. So I didn't Liberty to talk in Hindi. No problem, I mean, talking with the English also, but I see a lot of people out there that are engaged in the mobiles. So let me change their own. You started with the Amrit Kaal. ये जो इंडस्ट्री का अमृत काल है ये अभी नहीं आया। हमने अमृत काल से पहले स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया। वो ये कह रहा है कि 75 साल 1947 से हो गए। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी का अमृत काल देश, इकोनॉमी हमने 1991 में हमने लिबरेट करी। जब हमने हमारा मार्केट और दुनिया का मार्केट खोलने की बात करी वो WTO में हम गए। वो 5 साल का पीरियड रहा जब नरसिम्हा राव थी उसको करा। उसके बाद जब बहुत सारे चेंजेस हुए और फिर वो बजटिंग कंडीशन आ गई और स्कैम्स वगैरह का पूरा पीरियड चला। व्हाट द इंडस्ट्री हम जो फील कर रहे हैं ये 2014 के बाद एक रेडिकल चेंज पैराडाइम शिफ्ट इसमें आया। 2014 के बाद जब हम सब ने ये शेयर देखा और उस शेयर के ऊपर लिखा था मेक इन इंडिया, उसके बाद का जो फिनोमिना आया तो फिनोमिना मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीज़ें उसके बाद आदि गई। 14 से लेकर अभी 9 साल बाद हो गई। और इस पीरियड में सिस्टमेटिक चेंज इंडस्ट्री के बारे में आए और नेचुरल इंडस्ट्री के बारे में आया। जो इंडस्ट्री के लोग थे उनको भी लगा कि ये जो कुछ पाठ भारत ने पढ़ा दिया है ये पाठ भी रास्ता है। और आज का जो युवा निकल के आ रहा है इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएशन करके, वो अब अपने आप पर ऐसा फील करने लगा है कि आई कैन गो फॉर दी एंटरप्रेन्योरशिप। मैं अपनी एक इंडस्ट्री ला सकता हूँ। मैं अपने को बजाय जॉब ढूंढने के मैं अब कुछ लोगों को जॉब देने की सोच। इस पूरी प्रक्रिया में 7-8 साल बाद मेहनत लगी। पॉलिसी ऊपर से बनी, राज्यों ने भी उसको अपने अडॉप्ट किया। फिर मध्य प्रदेश सेटली और उसमें मध्य प्रदेश ने अपने आप को पोजीशन किया। आज की पोजीशन हम यदि देखते हैं कि मध्य प्रदेश उसमें कैसा देखता है तो 108 क्लस्टर मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें से 64 ऑपरेशनल, बाकी का काम चल रहा है। ये 6-7 महीने तो वो भी क्लस्टर आ जाएंगे। इस जो बैटरी से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये आइडेंटिफिकेशन हुआ। तो कुल मिला के जो सिनेरियो है एंटरप्रेन्योर के अंदर ये बात आई, इंस्टीट्यूट में जहाँ वो कर रहा है काम या हमारी एसोसिएशन में जब वो आता है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर है। वो इतने लंबे समय के संघर्ष 1000 साल का चला, उसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई थी। अन्यथा भारत जो है वो कभी भी सिर्फ कृषि प्रधान देश ऐसा पढ़ा है किताबों में वो था नहीं। जब हमारा GDP में वर्ल्ड की GDP में हिस्सेदारी जब देखते हैं वो 1500 साल तक 00 से जब इंडस मेडिसिन की रिवॉल्यूशन ओवर टाइम आई व्हाट वो ये कह रही थी। जब हम ये 1000 साल की उन्होंने आर्थिक इतिहास दुनिया का लिखा उनको कहा गया तो उन्होंने पाया कि नहीं ये तो एक जैसा फिनोमिना आ रहा है, ये नहीं चल सकता। फिर उन्होंने 2000 साल का किया और 00 से लेकर
1507 तक देयर वाज स्टिल इंटरनल मिलिट्री। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, सिंगल 1500 के बाद अगेन 150-200 साल का पीरियड है जहाँ चाइना और इंडिया में 2-4-5 साल चाइना आगे रहा या भारत आगे रहा। 1700 साल यदि आप पिछले देखते हैं तो चीन और भारत का हिस्सा वर्ल्ड की इकोनॉमी में 60% से ज़्यादा। ये नेतासान के सिंह टूट गया। अब वापस उसका फिनोमिना आ रहा है कि यस, हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थे, हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनने के ऊपर अग्रसर हैं। और ये जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो भाव आया उसमें कोविड ने इसको एकदम से बूस्ट दिया। जब ये भारत ने दुनिया को बता दिया, यहाँ के एंटरप्रेन्योर ने दुनिया को बना दिया, यस वी कैन डू, हम ये कर सकते। हमने कोविड के वैक्सीन को करा और अब तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाकर देखते हैं तो इन इसरो के साथ जो जुड़ते हैं, वो जो काम करते हैं, मेरी इंडस्ट्री है, मैं उसको छोटा सा प्रोडक्ट बना के देता हूँ। उसकी मुझे लगता है वहाँ जाकर मैं फील करता हूँ कि यस, ये जो जिस प्रकार पे दुनिया काम कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का कितनी का बॉस बनना है। तो ये सारा का सारा जो फिनोमिना चल रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज आर अबंडेंट। भारत की कक्षा प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की स्पीड और स्केल nobody can match now. This is the things that as you are entrepreneur, so there are various most important aspects of business like marketing and finance, HR, R&D. What do you think in a study center which is the most important? All are important, but एक्स्ट्रा सर एंड वरना सर नमस्कार। अनुभव यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग बैठे हुए, मन एक साथ स्टेज टाइम पे हो तो मेरे नाम तो सर यो मैं द सेम वर्शन से देखा और ऐसा आई मीन कहा एंड आई थिंक फॉर एवरी एस्पेक्ट टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एवरीथिंग। आई थिंक एमएसएमई या स्टार्टअप्स जो भी आज की डेट में ग्रो कर रहे हैं, अगर हम देखें तो अरब कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट है वो $170 बिलियन पे भी है। तो अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ने इस वक्त सबसे मीटिंग है, सबसे आगे हैं। तो आगे जो बिजनेसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है हर इंडस्ट्री ने तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना ही पड़ेगा। इट कैन नॉट रन विदाउट टेक्नोलॉजी। वट इज डिपेंडली फैक्टर, मार्केटिंग कैन बी अ फैक्ट, बट टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मुझे लगता है कि भारत की नेक्स्ट और दुनिया को अगर स्टार्टअप भारत दे रहे हैं, भारत की जर्नी में इकॉनमी में स्टार्टअप और युवा का अगर सहयोग है, तो मुझे लगता है प्रसाद साहब टेक्नोलॉजी इज द फैक्टर which is above all because every business need now technology. It is not like कि केवल कोई स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर ही बनाना है या ऐसा कुछ करना है, बट जिस भी क्षेत्र में आप इनोवेट कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कुछ नया कर रहे हैं, डिस्ट्रब कर रहे हैं, वो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं। आप ह्यूमन को कनेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन की मदद ले सकते हैं, ऐसा नहीं है लेबर ओरिएंटेड कंट्री तो रहेगा। बट मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो it will change the whole scenario। और अगर हम नेक्स्ट हमें थर्ड लेवल के इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही। thank you, Pradeep sir. So when you were having to मैं दसवें एक डेटा पर बता था, भारत में 85 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर, 85 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हैं और उसमें 50 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। 50 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आप कौन सा एडवाइजिंग प्लेटफॉर्म इसको 50 करोड़ लोग देखते होंगे। आई डोंट थिंक इतना बड़ा जो सपोर्ट है टेक्नोलॉजी का। और भारत 125 करोड़ लोगों के पास मोबाइल। आई थिंक अगर इस टेक्नोलॉजी अकेली की बात करी जाए तो हम पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को नया रख सकते हैं। 125 करोड़ लोगों के पास मोबाइल या 85 करोड़ लोग पास इंटरनेट है, 50 करोड़ लोग सोशल मीडिया। carbon sir, thanks about a very important question. Definitely nowadays credit system are very easier, but I still think sir lack of awareness. So what's your opinion with government to improve to avoid this lack of awareness? आपने हिंदी की बात की, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी हिंदी में बात करूँ। थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल कम होता हूँ, बट कोशिश करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल क्रंच जो है, जो एमएसएमई क्रेडिट गैप का जो बात हमेशा होती है, उसको थोड़ा सा हमें एक समझने की ज़रूरत है कि हम क्या बात कर रहे हैं।
मैं आपको बस 2 नंबर बताता हूँ और उससे आपको थोड़ा सा अन्यास लगेगा, और मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग उस चीज़ को रात दिन देखते हैं, हम लोग सिर्फ उसको रिसर्च के पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट आप लोग उसको दिन रात जीते हैं। 26 लाख करोड़, 26 लाख करोड़ इंडिया की अगर हम जो MSME सेगमेंट है और इसका अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, एड्रेसेबल क्रेडिट गैप, मतलब जो पूरा क्रेडिट गैप है मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, ऐसा जिसके बारे में कुछ किया जा सकता है, वो 26 लाख करोड़ है। ये पहला नंबर। अब दूसरा नंबर, MSME का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे कंट्री के GDP में कितना है? 29%। और इस 29% कॉन्ट्रीब्यूशन में जो पूरे कंट्री में जो क्रेडिट दिया जाता है उसमें से MSME को कितना मिलता है? वो है 14%। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हम बिना किसी नंबर में उलझ के अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस है, ये आप इस बात का अंदाज लग सकते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देखने के लिए इसके साथ हम लोगों ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई गई थी क्योंकि हिंदुस्तान में आज तक किसी भी स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन नहीं देखना का कैलकुलेशन नहीं किया था। तो इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि जो इंक्लूजन है वो मध्य प्रदेश तक कम है, और उसका सबसे बड़ा कारण इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू MSME, ये उसका सबसे बड़ा है। उसको टेक्निकली आप लोग कहते हैं यूसेज का चैलेंज है, वो यूसेज का चैलेंज MSME की क्रेडिट का चैलेंज। तो ये दूसरी बात है। इस साल हम लोगों ने वही रिपोर्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए बनाई। फाइनेंस मिनिस्टर ने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि हम आंध्र प्रदेश के लिए भी बनाएं, और उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल कर आ रहा है और वो यूसेज का डिफरेंस है, यानी कि MSME क्रेडिट का जो फैक्टर है आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा मिला। तो ये चैलेंजेस जो है, जो क्रेडिट से रिलेटेड जो सिचुएशन है वो ये है। अगर बात इस बात अगर देखा जाए कि करना क्या है, क्या किया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें पूरे सोच की बदलाव की ज़रूरत है। हमारा बैंकिंग सेक्टर से जब हम लोग बैंक से बात करते हैं तो उनका एक कहना रहता है, उनका एक हमेशा एक बात रहती है, जो बैंकर लेवल स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो होती है SLBC, उनमें उनका एक बात हमेशा कहना होता है कि देखिए जो हमारे क्रेडिट मांगने आता है और जिसका प्रपोजल ठीक हमें लगता है उसको हम दे देते बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो वो डिमांड को मीट करने की, मैच करने की कोशिश कर। ये एक तरीका। इसका देखने का दूसरा भी एक तरीका वो होता है सप्लाई रेट ग्रोथ, मतलब कि आप ऐसे एवेन्यूज़ देंगे जहाँ अगर आप क्रेडिट को बढ़ा दें तो शायद ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती। तो वो सप्लाई रेट ग्रोथ जो है वो माइंडसेट चेंज की बात है, जो शायद हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और थोड़ा देखने की ज़रूरत है। और इसके मॉडल और इसमें एग्जाम्पल चाइना ने, साउथ कोरिया ने करके दिखाया है। उन्होंने सप्लाई क्रेडिट की सप्लाई को के बेसिस पे ग्रोथ को टारगेट करके ग्रोथ आगे बढ़े हैं। तो फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर ऐसा करना है तो फिर स्टेट का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि अब तो स्टेट में बैठे हैं, मतलब नेशनल लेवल की बात का काम है, लोगों के लिए थोड़ा सा बेमानी होगा। तो स्टेट भी इन सब चीज़ों में काफ़ी कुछ काम कर सकता है। तो जैसे कि जो हमारा SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम में मैं बार बार रूरल इकॉनमी, वुमेन इकॉनमी पर पा रहा हूँ, क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइजेस जो छोटे एंटरप्राइजेस सबसे छोटे लेवल पर हैं वो शायद 99% हैं, तो उनकी बात करना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के ज़रिए बहुत कुछ चीज़ की गई है, मगर अभी उस पर बहुत कुछ काम किया जा रहा है। इसी तरीके से
अगर हम देखें एक नया कुछ समय में कुछ नई चीज़ें निकली हैं, उसमें जो कोलैटरल मॉडल है, कोलैटरल मतलब बैंक्स को दिक्कत होती है कि भाई हम लोन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, हम छोटी जगह पे नहीं जा सकते हैं, जाकर कर पाते हैं, हम बहुत छोटे लोन्स नहीं अमाउंट नहीं प्रोसेस कर पाते हैं। तो को लैंडिंग स्पेस का मतलब है कि बैंक पैसा देगा और जो NBFCs हैं वो उस पैसे को के बेसिस पे बिजनेस आगे बढ़ाएगी। तो ये दूसरा मॉडल है जिसके चलते जो क्रेडिट का जो एनवायरनमेंट है ये चेंज किया हो सकता है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे MSME का जो एक्सपोर्ट का मार्केट है मध्य प्रदेश में, हमारी ही स्टडी ये बता रही है कि एक्सपोर्ट के में MSME का कॉन्ट्रीब्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। उसको टारगेट करके चीज़ों को आके सप्लाई लाइन पुश करना शायद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सब चीज़ों को देखने से शायद क्रेडिट की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक रिलीज़ किया जा सकता है। Thank you, sir. I just want I think this question as industry association from the investor meeting जो एक आस्पेक्ट्स है कि वो अभी डाटा शो कर रहा है कि 89% those may कुटी उद्योग है and they don't want some now in the media or small scale. So what's your view regarding this? Regarding growth, Regarding this data is not related with the fathers. No, my question is that जो डाटा दिखा रहा है कि 99% वो भी इंडस्ट्रीज हैं, इट्स लाइक micro, like any micro. I say, what's exact your view? What exactly is it? Only 1% for medium or I think like whether artificial on it, it is a copying process. And it is not. Nobody is discouraging them to increase their capacity or go for capacity enhancement. As far as just continue with the finance part, it is available. And the way in which the industry face in earlier days has gone. पहले पैसे के लिए हमको MDFs जाना पड़ता था, इंदौर यहाँ के आदमी की बहुत मुश्किल से होती है। अब तो बैंक के लिए बार आती है पैसा देने आते हैं। आपका माइंडसेट चाहिए, आपको जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है तो पैसा इस नॉट एंड 25% पर एनुअल का फाइनेंसिंग अवेलेबल है पिछले 8 सालों में। 13,000 करोड़ से 41,000 करोड़ MSME को फंडिंग हुआ है और NPA की सबसे कम है। अनफॉर्चुनेट इम्पैक्ट क्या है कि जो SME की बात आपने बात करी, वहाँ पर हमें टारगेट है फंड दी माइक्रो, फंड दी टाइनी एंड टू फंड MSME, पर उसको मॉनिटर करने की व्यवस्था नहीं है। SFDC की मीटिंग में मध्य प्रदेश सरकार से वो जाता नहीं है। बैंकर्स बैठते हैं, हम लोग कभी एसोसिएशन के कुछ लोग फोर्स में चले जाते हैं टू डिस्कस करते हैं एंड वे डिस्कस करते थे सचिन जी अच्छा इसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं देगा, दिस शुड गो द इंडस्ट्री मिनिस्टर शुड गो एंड दे शुड प्रेशराइज बैंक टू लेंड द MSMEs। पर जहाँ तक छोटा एंटरप्रेन्योर है उसको माइक्रो में आना है, माइक्रो से स्मॉल में आना है, स्मॉल से मीडियम में आना है, उसको फैसिलिटी सारी सब्सिडी में वो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इससे वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी खुद की क्षमता के हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के हिसाब से वो ग्रो कर सकता है। हाँ, उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग, उसको इस प्रकार का लिंकेजेस जो उसका मार्केट एक्सपांड कर सके, इसका गैप है। एक बहुत छोटा जो व्यवसायी है, तो छोटा इंडस्ट्री वाला है, वो अपने आप पे सारी चीज़ें हैंडल करता है। वो मैन्युफैक्चर भी है, वो प्रोक्योरमेंट भी करता है, वो मार्केटिंग भी करता है, वो R&D भी करता है, वो सारी चीज़ खुद करता है। तो वो खुद करने के बाद उसके बाद समझ ही रहता है कि अपना खुद का अच्छी बननी चाहिए। तो एक लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में एक बैलेंस उसको रहता है, वो उसका संतुष्ट रहता है। भारत की प्रवृत्ति है कि मनुष्य जो थोड़ा संतुष्टि के भाव रहता है, बट ग्रोथ इज नो लिमिट। और अपने बहुत सारे हमने देखे स्टार्टअप से शुरू हुआ है, जो नहीं काम करने हो गए, देश तो देख रहे हैं, वो देखते देखते हो रहा है।
तो वो सीन तो है लोगों में करने की। और मुझे लगता है अभी जिस प्रकार का पॉलिसी फ्रेमवर्क बना है, जिस प्रकार की फंडिंग उसको अवेलेबल है, जिस प्रकार के एवेन्यूज दिख रहे हैं उसको ग्लोबली दिख रहे हैं, उस पर इस प्रकार का कोई तो जल्दी इस प्रकार के रुकावट आंसर्स and for the little king so that you want to say this is global like that in the like that putting the video all so there will be no like disadvantage by the government. See, so there is some disadvantage. Rather, the government, भारत सरकार ने तो उसकी लिमिट बढ़ा के वो वैसे बड़ा कर दिया है। VITBS के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे, वो तो कोई और ही था। डार्स के बाद जब जा रही है बात होती है तो सब्सिडी नहीं पड़ता, सब्सिडी का रिक्वायरमेंट ही सब्सिडी वगैरह जो भी होती है वो थोड़ा इनिशिएट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको उसके ऊपर बर्डन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कम हो जाए, इसके लिए उसको होता है एक इंसेंटिव है। पर एंटरप्रेन्योर्स मुझे लगता है उसे इंसेंटिव से नहीं चाह रहे, वो बाहर निकल के आती है, वो अपने आप शुरू कराती है और उसके वो रस्ते ढूंढता है आगे बढ़ने के लिए, उसको कोई इस प्रकार का नहीं होता। वो जितने इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात नहीं करेगी, 108 इंडस्ट्रियल पार्क मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, 84 उसमें से बन गई। ये सब इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, मेरे को कहीं टाइनी है, माइक्रो है, वो आ जाए और उसको अपने आप को ग्रो करे, के पास नेट अवेलेबल है। हाँ, एक चीज़ जो कमी दिखती है वो है उनमें अवेयरनेस ऑफ द पॉलिसीज, उनमें अवेयरनेस ऑफ द ग्लोबल मार्केट, उनमें अवेयरनेस ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, उसकी प्रोडक्ट की और भी जो नॉलेज की चीज़ें हैं वो उसको थोड़ी सी लिमिटिंग है। हम यदि ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में देखें, क्योंकि ये बात तो सही है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो अब नॉलेज बेस्ड है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न और ग्लोब इज कंसर्न, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक चीज़ आप सब हम देखते हैं कि पिछले 25 सालों में सॉफ्टवेयर ने सब कुछ बदल दिया, दुनिया को खा दिया। सब कुछ इस नाउ सॉफ्टवेयर से चल रहा है। आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके पीछे जो एक्सचेंज चल रहा है उसमें भी सॉफ्टवेयर चल रहा है। आप नंबर डायल कर रहे हैं तो कोई कनेक्ट कर रहा है, वो पहले सब सॉफ्टवेयर से चल रहा है। पहले ये सब स्विचिंग होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे तो सारा स्विचिंग सिस्टम था। पिछले 20 सालों में ये टोटल सॉफ्टवेयर ने खा लिया है। बट व्हाट आई सी नाउ, next 20 years, all the software will be taken over by the AI-based technologies. सब कर रही ना, अभी ये जो सब लगता है, इतने सारे रखते हैं लैपटॉप वगैरह रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सब उसमें आए जाती हैं, पूरी लाइब्रेरी इसमें आ जाती है। ये सब भी समाप्त करने वाला है, सब आपके साथ चलेगा, सब आपके साथ चलेगा। तो जो AI सी जाने वाली है उसमें भारत की संभावना, उसमें माइक्रोवेव चलेगी, उसमें मीडिया भी चलेगी। उसके कारण क्या है जो अभी मैंने रिपोर्ट किया था कि प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि भारत का स्केल और भारत की स्पीड nobody can match in the world now, and now means it will continue for, in my opinion, it will continue for another 1000 years. 1000 साल तक दुनिया हमसे आप इसमें नहीं निकल पाएगी। ये बात सबको समझ में आना चाहिए जितनी जल्दी करें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है हमारा युवा। और वो भी युवा अब टेक्नोलॉजी के साथ है, वो यूथ के साथ है। जैसा प्रदीप जी ने कहा कि हमारे पास कितने सारे मोबाइल यूज़र है, जितनी आबादी है उससे ज़्यादा हमारे पास मोबाइल यूज़र है। अब जरा कंपेयर करके देखिए दी लार्जेस्ट इकोनॉमी, दी डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ दी वर्ल्ड अमेरिका, उसमें प्रति व्यक्ति पर पर्सन जो वेपन्स है वो 1.3 है। गेटिंग माय पॉइंट? एक व्यक्ति के पास 1.3 वेपन है। यहाँ पर एक व्यक्ति के पास मोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, तो जो कंट्री बन रही है, जो आने वाली इकोनॉमीज बन रही है, वो किस तरह ध्यान कर रही है, वो दुनिया के लोग इसलिए इन्वेस्ट कर नहीं आ रहे, उनको समझ में आ रहा है दी ग्रोथ इज विथ इंडिया, मैन पावर इज विथ इंडिया, दी टेक्नोलॉजी अडॉप्टिवनेस इज विथ इंडिया। अब इसमें हो टाइनी हो, माइक्रो हो, कुछ भी हो, वो जितनी जल्दी सारे चीज़ को अडॉप्ट करेगा, उसका मुझे लगता है कि हमारा ग्रोथ का बेसर है। Thank you, sir. Madhya sir, as an entrepreneur, you are closely observing the various business, and somehow this is mostly business like they are running family to family, it's generation to generation. What's your view on that? This what are the ideas we need to diversify or what exactly we need to know the this? So family businesses are going by. We are working with various family houses for investments also. So जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक तो गुड थिंग ये है कि नई जनरेशन अपनी फैमिली बिजनेसेस को अडॉप्ट भी कर रही है।
एक बड़ा चेंज मैं देख रहा हूँ, और वहाँ से यंगस्टर्स पढ़ के वापस अपने फैमिलीज में लौट रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक जो आपने देखो एक नई थॉट प्रोसेस है कि अब जीवन शैली कैसी है, लाइफ कैसी है, वो भी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो बड़े शहरों से बेहतर हम बीट टाउन्स की लाइफ स्टाइल बेहतर होती जा रही। तो ये जितने भी फैमिली हाउसेज हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं, यहाँ पर यंगस्टर्स वापस आते जा रहे हैं। उन्हें सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि दो दे हैव लिमिटेशंस ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो उनको बहुत ज़्यादा लिवरेज नहीं करता पैसे खर्च करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जिसे, पर उनके पास बैकअप होता है टू अडॉप्ट एनी न्यू टेक्नोलॉजी विच वी दे जस्ट नीड। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यंग कंपनियाँ हैं, बोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंदौर में हो चाहे भोपाल में, वहाँ यूथ टेक्नोलॉजी पोर्शन को ले रहे हैं, नई थॉट प्रोसेसेस ले रहे हैं। वहाँ पर वो वही कॉन्सेप्ट्स को ले रहे हैं जिससे उनका ओल्ड बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। विद दे आर टॉकिंग अबाउट VRPs। मैं कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जाता हूँ जिसने यंग जनरेशन ने आके पूरा सिस्टम ERP बेस्ड कर दिया, पहले नहीं था, एंड दैट गिवन वाइड टाइप ग्रोथ टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा मुझे लगता है फैमिली हाउसेस वहाँ पर वो जो एक फाइनेंशियल उसकी या बेसिक सेटअप की जो प्रॉब्लम नहीं होती, तो थर्ड और सेकेंड जनरेशन वालों को थी, जो फर्स्ट जनरेशन वालों को वो जस्ट नो जीरो से फिर वो करना पड़ता है, ये पास वो सेटअप होता है, दे इमीडिएटली वर्क ऑन द टॉप मोस्ट थिंग दैट इज टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस। और एक बार नई चीज़ देखिए कि मेरे फैमिली हाउसेस में जो यंगस्टर्स हैं, दे आर मोर ओपन to work with the startups. They are more open to invest with the startups. They also want that a startup should come with them and solve their problems. Even this adoption is also coming in family houses. So it's a big change on our chairs. Like you said, somehow is a time limit. So we are going to close this session. Any questions from the audience community? We have time after closing. Okay. So this is a wonderful session, and we are either for multi-disciplinary at this person, Art of India, academics and all. So a lot of inputs we received through this session. Like there are a lot of things like lack of awareness or foster credit schemes and initiative by the government, whatever they are doing, we are practically trying to promote this small media wall and micro and enterprises as well as a startup. When journalists like lots of things for an initiative, because the basically government they want India just promote entrepreneur. It's just to dependent on the job. We need to just become as a job creator. So thank you so much for the Friday and us. Right. Have a good music.